These days, I've seen many such videos floating which say, how much do lawyers earn? Are lawyers earning less than taxi drivers? What is this problem with the law profession? Why is this so unregulated? Here, we will be having solutions to all of that. So here are 5 real advice pointers for you law students if you wish to apply this immediately and see your success graph going from this to this. Hey everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Number 1 thing, you are doing haywire internships and haywire work. You are applying to a matrimonial lawyer and to a commercial lawyer and to a litigation law firm and to a boutique law firm at the same time. And you are not even changing your CV, your cover letter, your statement of purpose. I don't know why you're doing that. You're not researching about whom you are applying to. You are just taking data out of internet and doing your work as if you are some machine, and that too not properly guided by AI और coding. तो do not do that. आप जब भी internships के लिए apply करें, जिसके यहाँ आप apply करें, please उसके बारे में पढ़िए. वो कौन है? Let's say you are applying to Advocate Isha Kapoor. Read about me, read about the work that I do, read about the cases that I have done. Why are you interested into that? Formulate an opinion. Now write all of that into the cover letter. It should reflect that you will benefit from this internship and what are your goals from this internship. Now write that accordingly for every other person. This is going to be different for every person. Now when you're applying for any kind of internship, go for a good CV. Prepare your CV nicely. Prepare a resume also because it's shorter. Some people do ask for resume instead of a CV. And then prepare a statement of purpose or a cover letter. That's very important. In fact, that's essential, I would say. Also, you should have a plan for all your internships. Let's say if you're in the first year, plan out your internships. How many internships I want to do? What will be the duration of those internships? And you can do that even if you are in the 3rd, 4th or 5th year. Now, write down your goals. Like you may say that I am interested into this field, so I'll be doing internships for this field, and this may change every year. जब आप नई चीज़ें पढ़ते जाओगे, नए लोगों से मिलते जाओगे, आपके वो plans change होते जाएंगे. But फिलहाल आपके पास plans होने चाहिए. हर बार आप internship के लिए apply करो to around, I would say 40 to 45 places, but ये 45 प्लेसेस के लिए तो आप अपना कवर लेटर और सब कुछ बना नहीं सकते हो. तो कवर लेटर बनाने वाली जगहों को प्लीज 15-20 शॉर्ट लिस्ट करो. 15 से 20 अपने कवर लेटर्स या स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस लिख लो हर एक सेमेस्टर के लिए, और उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो. सी दैट यूल बी गेटिंग डेफिनेट रिजल्ट्स. और यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप के रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हम बात कर रहे हैं सक्सेस ग्राफ बढ़ाने की. आप जब इस तरह से प्लान आउट करके चीजें करेंगे तो आपको लाइफ में वो मिलेगा, वहां जा पाएंगे जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, और उसी तरह से आपकी लॉ स्कूल में सक्सेस बढ़ेगी. और वो जो वीडियोस देखिए ना, डू लॉयर्स अर्न लेस देन टैक्सी ड्राइवर्स, वो सब झूठ हो जाएगा उसी समय. मेरा प्रॉमिस है आपको. अच्छा, आप में से कुछ लोग जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है. मैंने जब से देखी है, जब से मेरी आंखों के सामने आई है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं. आपने देखे ऐसे कोई कोर्सेज जहां पे आप 20,000 से भी कम में जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी एंड टू एंड, मतलब फाउंडेशन बैच. द जुडिशरी वाला फाउंडेशन बैच इज फॉर यू. नया फाउंडेशन बैच एक आया है. पहले भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और उनके अच्छे रिव्यूज रहे हैं यहाँ पर. तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको BNS, BNSS, BSA जैसे न्यू लॉज की पूरी कवरेज मिले, आपको लाइव क्लासेस मिले, आपको टेस्ट पेपर्स मिले, आपको गाइडेंस मिले अपने मेंटोर्स की, आपको डेली प्रैक्टिस सेशंस मिले, आपको क्लास नोट्स भी चाहिए, साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी चाहिए, आप लाइव नहीं देख पाते हो कई बार, तो आपके लिए ये बैच परफेक्ट है. अभी यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस ना मेजर लॉस के साथ साथ माइनर लॉस पे भी कराया जाता है. मेरे पास सारी डिटेल्स, और मैं जैसे जैसे बढ़ते जा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कुछ अफोर्डेबल मिलता है उन लोगों के लिए मिलता है जो एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है. काफ़ी जगह मैंने देखा है कि बेयर प्रोविजन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो भी इन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया है, तो आई एम श्योर वो देंगे ही आपको. नाउ ये डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं, जैसे कि जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच यू कैन गेट फॉर 19,999. छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्रैश कोर्स आपको 4,499 में. गुजरात जुडिशरी क्रैश कोर्स अगर चाहिए तो 2,999 में. और अगर प्रीलिम टेस्ट सीरीज चाहिए हिमाचल की, या धर्मा MCQ फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए जुडिशरी के लिए, तो ये दोनों चीजें आपको 999 में मिल जाएगी. तो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 999 1,000 रुपीज से भी कम में मिल रही है. लिंक्स चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट. और अगर आपको ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ना, जो प्राइस मैंने अभी बताया, इसके ऊपर और भी डिस्काउंट चाहिए, इसके ऊपर ओवर एंड अबव, तो आपको मेरा कोड यूज करना है VL1000. प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेकआउट करो, और अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो. इसी से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे. लॉ स्कूल में रहते रहते बहुत कंफ्यूजन मैंने देखी है स्टूडेंट्स में कि
LLM रिलेटेड कन्फ्यूजन, कोचिंग रिलेटेड कन्फ्यूजन, मुझे अभी से थर्ड ईयर से सेकंड ईयर से कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर मुझे फोकस करना चाहिए अपनी इंटर्नशिप्स पे, अपने सोशलाइजेशन पे, सब पे. सी, you can start your judiciary coaching, you can start any other coaching that you wish to opt for from the third year, fourth year. I would say fourth year से पहले तो नहीं करना चाहिए, but fourth year में भी start करो. That doesn't mean you will keep all the things aside. It doesn't mean that you will not do your internship. It doesn't mean you will not write your research papers and all. No, if you're doing that, you're doing a big mistake. आप करो अपनी coaching, आप अपना college attend करो, but take out time for all of those things. And if you have this in mind that from the fourth year or the fifth year I'm going to start from the judiciary coaching, तो 1, 2, 3 year में अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, मूड कोर्ट्स होते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं, आपके एविडेंस रिलेटेड कॉम्पिटिशंस होते हैं, बेल रिलेटेड कॉम्पिटिशंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लॉ स्कूल में होती है, उनको प्लीज़ कर लो. हो सकता है आप उन कॉम्पिटिशंस के लिए 1 साल 1.5 साल का ब्रेक लो. आप जब अपनी कोचिंग भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे, इंटर्नशिप्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, वो भी करोगे, कोर्ट भी जाओगे, तो फिर आप वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे. उसी तरह से प्लान करना प्लीज़. 1, 2, 3 ईयर में वो एक्टिविटीज़ कर लेना. अब ये कन्फ्यूजन रहते रहते मेरा कहने का मतलब है, इस कन्फ्यूजन से अपने आप को हार्म मत होने देना कि इसी कन्फ्यूजन में मैंने तो कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं करी, मैं तो सिर्फ कोचिंग करता रह गया और फिर बाद में मुझे आई रियलाइज्ड कि आई डोंट इवन वांट टू गो फॉर इट. दैट कैन हैपन. नथिंग इज श्योर शॉट इन लाइफ. हो सकता है कुछ भी. अगर आप लॉ में हो तो वकील बनने की तैयारी तो आप कर ही रहे हो. एंड अ लॉयर, एन एडवोकेट, एन एस्पायरिंग एडवोकेट कैन नेवर स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट. इफ यू डू, यू आर हार्मिंग योर ओन सेल्फ. नाउ नेवर स्टॉप से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन कॉलेज के बाद कोर्ट जा रहे हैं, बट अपनी इंटर्नशिप्स आप नहीं छोड़ेंगे, अपनी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस आप नहीं छोड़ेंगे, लॉयर्स को असिस्ट करना आप नहीं छोड़ेंगे. एक और कन्फ्यूजन है LLM कन्फ्यूजन. नाउ शुड आई डू LLM आफ्टर कंप्लीटिंग माई लॉ स्कूल, मतलब मैं 5th ईयर में क्लैट PG के प्रिपरेशन करने लग जाऊँ, या फिर मैं थोड़ा रुकूँ, वेट करूँ. देखो, मैंने वेट किया था. मैंने वेट इसलिए किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट वर्किंग राइट अवे. I am a first generation lawyer. I had no base as a lawyer. I had no client base. I wanted to build that first. You can do that if you wish to. Now there are people who say that I am doing LLM first because I want some income guarantee in the form of income coming from teaching. That means maybe I want to teach in some educational institute, coaching institute. I want to teach in a college, and they will take me only if I have an LLM degree and I've cleared the UGC NET exam. Okay, fine. That's also fine. So clear your head. What do you wish to do? इस LLM की कन्फ्यूजन में, ये कोचिंग की कन्फ्यूजन में ऐसे नहीं रह जाना है आपको कि आप अपना जो एसेंशियल चीज़ें उन पर ध्यान देना छोड़ दे रहे हो. सब कुछ ध्यान रखो, इस बारे में भी बात करो, चाहे सीनियर्स से बात करो, खुद अपना ग्राउंड वर्क करो, एडवाइस लो लोगों से, बट इस वजह से बाकी चीज़ें मत छोड़ो. थर्ड थिंग, नॉट राइटिंग इनफ. मतलब रिसर्च पेपर, एस्से, आई हैव बीन सेइंग दैट इन माई मल्टीपल वीडियोज़ कि आप अपने हर एक सेमेस्टर में एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर, एक एस्से, कुछ ना कुछ लिखो. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन न्यूमरस वेज, एंड दीज आर ये तो बहुत छोटे से लेवल पे भी आपको हेल्प कर जाएगा. अगर आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं होते हैं, मे बी यू कैन सबमिट दैट फॉर वन ऑफ योर लॉ स्कूल प्रोजेक्ट्स. मे बी यू कैन डू एन इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर ऑन दैट विद वन ऑफ योर सीनियर्स और वन ऑफ योर प्रोफेसर्स. दैट यू एक्चुअली हैपन्स. लेट्स से यू राइट टुडे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस्ट एविडेंस रूल, एंड you have a research paper kind of ready, you have an outline ready, and you show that draft to your professors, and your professor seems interested into that, and she says कि okay, चलो इसको ना हम मिलके करते हैं, I will give you some real advice on this, हम इसको कैसे better कर सकते हैं, and we'll go for some publication. Don't you think that's going to be wonderful? But उसके लिए आपको अपना ground work ready करना पड़ेगा. No professor is going to come to you, sit with you, make you write, make you research. No. ऐसी चीज़ें करने से एक तो आपकी बुद्धि बढ़ने वाली है, दूसरा आपकी सोशलाइजेशन भी तो साथ साथ हो ही रही है ना. यू आर गेटिंग मोर कनेक्टेड टू द टीचर्स हु आर टीचिंग यू, हु आर इन्वॉल्व विद यू. दे विल गिव यू अदर एडवाइजेज ऑल्सो साइमल्टेनियसली. यू से दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू बिल्ड दैट कनेक्ट. द रीजन इज यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग. कनेक्ट करने के लिए यू डू नॉट नीड टू कॉल योर प्रोफेसर्स, यू डू नॉट नीड टू हैंग आउट विद देम इन द कॉलेज. नो, they are there for a purpose. You are related to them because you will be connected to them because of work reasons only, because of law reasons only. तो वही करिए.
साथ में रिसर्च पेपर्स लिखने से आप प्रेजेंट करने जाएंगे, आप एसेज लिखेंगे, आप प्रेजेंट करने जाएंगे, आप कहीं ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, आप उसको कोई सोशल मीडिया पे डालेंगे, पीपल विल गेट टू नो एटलीस्ट यू आर एन एडवोकेट, यू आर एन एस्पायरिंग प्रोफेशनल एंड दे विल हैव दिस इन देयर माइंड. नाउ इफ एनीथिंग विल स्ट्राइक देम लेटर या कुछ उन्हें परेशान करेगा तो उनको एकदम से याद रहेगा, ओ दैट ABC पर्सन इज एन एडवोकेट, लेट मी थिंक ऑफ, आई मीन माई माइंड इज थिंकिंग ऑफ हिम ऑटोमेटिकली एंड लेट मी गो टू हिम फॉर सम एडवाइस नाउ. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यही है जिससे ऑर्गेनिकली क्लाइंट बेस बिल्ड होता है. और इससे कब आपको परेशानियां होनी बंद हो जाती हैं आपको पता नहीं चलता है. तो ये थर्ड रियल एडवाइस को बहुत ध्यान रखना. फोर्थ थिंग, ignoring the avenues to earn and socialize. Socialization and earning goes hand in hand in the legal profession. You think that I need to focus full time on the law school. I do not need to think of avenues to earn. That's incorrect. You are required to think of avenues such as assisting a lawyer in drafting. You can always do drafting. If somebody says that a law student cannot be good at drafting, legal drafting, that's wrong, that's bad. Of course you need practice of at least 2 to 3 years if you are a law student. अब लॉयर बन जाते हैं, क्लाइंट से खुद बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, हमें पता होता है लॉ को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है. फिर आप 6-7 महीने 1 साल की प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे अच्छे ड्राफ्ट्स बनाने लग जाते हो. अब आप देखो प्रैक्टिस की कोई अंत नहीं है यहाँ पे, लेकिन लॉ स्टूडेंट हो तो हाँ 2-3 साल में आप साथ जैसे काम करते रहोगे इंटर्नशिप्स पे. यू आर आस्किंग फॉर वर्क. कुछ लोग होते हैं इंटर्नशिप्स पे जाके भी 1 घंटा काम किया या 1 घंटा वो जो भी उस दिन उनके कंसर्न्ड एडवोकेट्स का केसेस है, मैटर्स है, उनको ऑब्जर्व किया. उसके बाद दे गो टू द कैंटीन, दे गो फॉर हैविंग सम फन, दे आर चिलिंग आउट इन वेरियस प्लेसेस इन द दिल्ली हाई कोर्ट और वट एवर कोर्ट दे आर वर्किंग एट, सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी. ऐसा नहीं करना है. जैसे ही केसेस ओवर होते हैं आपको देखनी है, फाइल पढ़नी है. आप पहले से ब्रीफ नहीं बनाएंगे क्योंकि आप इंटर्न है अभी. उसके बाद आप अपनी तरफ से ब्रीफ प्रिपेयर करो. Show it to the senior. Please request them that, ma'am, sir, whenever you have time, please go through my brief. Let me know if this brief is nice. If you think कि मैंने एक अच्छा ब्रीफ बनाया या नहीं बनाया तो प्लीज़ आप मुझे प्लीज़ अपना 2-4 मिनट का टाइम निकाल के मुझे प्लीज़ समझाओ कि मुझे कैसे करना चाहिए. हर रोज़ फाइल्स पढ़ो. जितने केसेस रोज़ हुए हैं उन सब की फाइल्स को रीड करो. बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल रीडिंग की आदत होना. फाइल रीडिंग, ब्रीफ बना लिया, ठीक है, आपका आधा समय तो ऐसे ही निकल जाएगा. और उसके बाद आपके जो एवेन्यूज टू अर्न बनेंगे, मतलब उनको पता लगेगा कि आप धीरे धीरे ब्रीफ बनाने में, ड्राफ्टिंग में, हर चीज़ में अच्छे होते जा रहे हो. एंड देन व्हेन दे विल गेट सम वर्क, व्हेन दे विल हैव टू डेलीगेट इट, दे विल डू इट टू यू, बिलीव मी. ये हो गया आपकी एक चीज़. फिर साथ में और भी कोई चीज़ें हैं. मैंने एक स्पेसिफिक इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है पूरी कि प्लीज़ क्या क्या आपके एवेन्यूज़ टू अर्न हो सकते हैं लॉ स्कूल में. उसको आप जाके देख सकते हो. आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट वीडियो. ये तो बस आपको याद दिलाने के लिए है कि ये सारी बातें भी मैंने की थी कभी. प्लीज़ उसे जाके देख लो. तो अपने सोशलाइजेशन और एवेन्यूज़ टू अर्न को इग्नोर नहीं करना है. सोशलाइजेशन का रियल मीनिंग भी समझना है. यहाँ सोशलाइजेशन का मतलब कैंटीन में बैठ के कॉफ़ी पीना नहीं है, कॉफ़ी फ्लेक्स करना नहीं है, स्टारबक्स की फोटोज फ्लेक्स करना नहीं है. दैट्स ओनली टेकिंग यू बिहाइंड. नहीं करो. ऐसे समझो कि जब भी ऐसी चीज़ें ख्याल में आए ना, सोचो कोई भूत है आपके ऊपर जो आपको ऐसे पीछे 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 खींच रहा है, उसको उतार के फेंक दो. बहुत हिम्मत से करा जाता है ये काम, बट करना है आपको. 5th थिंग, कलेक्टिंग ड्राफ्ट्स. जैसे जैसे हम लॉ स्कूल में आगे बढ़ते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, हमारे पास हमारी आंखों के सामने वेरियस ड्राफ्ट्स आते हैं. कभी हमारे सीनियर सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो कभी वो डिवोर्स का केस आर्ग्यू कर रहे होते हैं. कभी हमारे सामने MACT के रिप्लाईज आते हैं, तो कभी हमारे सामने रिट्स आती हैं या काउंटर एफिडेविट्स आते हैं, और हम बेवकूफ़ों की तरह उसको कलेक्ट नहीं करते हैं. आस्क योर सीनियर्स, प्लीज़ गिव मी अ कॉपी ऑफ इट. वर्ड फाइल्स मिल रही है, PDF फाइल मिल रही है, स्कैंड फाइल मिल रही है, सब कुछ कलेक्ट करो. लेटर इन लाइफ, लेट्स से आपको 2 साल बाद कोई सीनियर आपसे बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक ये रिट ड्राफ्ट करेंगे क्या, ये ना इस लेट्स से प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है. अब आपको याद आएगा, अरे हाँ एक बार ऐसा एक केस करा तो था, बट आई डू नॉट हैव दिस ड्राफ्ट, व्हाट टू डू. इंटरनेट पे सर्च करता हूँ. इंटरनेट पे आपको इतने बेकार ड्राफ्ट मिलेंगे, यू विल बी डीमोटिवेटेड, यू विल से नो आई हैव नॉट डन इट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, अब मेरे को गाइडेंस चाहिए. वहाँ उस इंसान का भी कॉन्फिडेंस खत्म और आपका भी कम हुआ, है ना. अगर आपने उसी समय उस ड्राफ्ट को कलेक्ट करके अपने लैपटॉप में, अपने iPad में, अपने फ़ोन में, कहीं पे भी एक छोटी सी जगह उसे दे दी होती रहने के लिए, तो आपको कितना काम आता. तो एवरी डे कलेक्ट ड्राफ्ट्स फ्रॉम पीपल.
from your seniors, from your professors, from your people who you are interning with. बहुत सारा होता है ना आपके सुपर सीनियर्स नहीं, ऐसे लोग जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे आप मांग सकते हो. प्लीज़ कलेक्ट करो, समझो उस ड्राफ्ट को. आप ऐसे समझो, चेकलिस्ट ही बनाते जाओ अपने लैपटॉप में, वो पूरा रखो कि ओके नाउ आई हैव दिस सेक्शन 24 ड्राफ्ट, ओके नाउ आई हैव दिस रिट ड्राफ्ट, रिट ऑन दिस मैटर, नाउ मेरे पास ये MCD रिलेटेड मैटर का ड्राफ्ट है, मेरे पास ये लीगल नोटिस इस वाले टाइप का ड्राफ्ट है, मेरे पास ये 138 के केसेस का ड्राफ्ट है, मेरे पास ये MSCT पे रिप्लाई कैसे करते हैं वैसे ड्राफ्ट है, मेरे पास ये एक डार का वो है फॉर्मेट, मैंने इसको स्कैन करके रख लिया था ताकि मुझे कभी जब बाद में कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको देखूँ. डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, ये आपको जैसे मैंने बोला सक्सेस लैडर इधर 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 ऐसे ऐसे चढ़ते हो ऐसे चले जाएगी. सक्सेस लैडर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे 1 करोड़ पर केस चार्ज करने लग जाएंगे या 50 lakhs पर केस चार्ज करने लग जाएंगे, बट कोई कमी नहीं आएगी ज़िंदगी में. अच्छे से चलेगा सब. अच्छे से चलने से मेरा मतलब आप बोलते हो मैम हिंट तो दे दिया करो कितना अच्छे से चलेगा. ओके, यू सी पीपल डूइंग गुड जॉब्स, गुड इंजीनियरिंग जॉब्स एक्सेट्रा. आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स आर इनटू इंजीनियरिंग ओनली. तो आपका भी वैसे ही अच्छा वाला सिस्टम चलेगा. और आपको कोई ऐसी कमी नहीं आएगी. वो भी वीडियोस को आप भूल जाओगे. डू लॉयर्स और लेस देन टैक्सी ड्राइवर्स. प्लीज़ फॉलो दीज 5 advice pointers and I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.